एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3 ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇਣਗੇ। हमारे पास में ना झुग्गी झोपड़ी बहुत सारी पड़ी हुई है, तो यहाँ से बच्चे ना हमारे घर पर मांगने के लिए, खाने का मांगने के लिए जाते थे। तो हम उनसे पूछते थे भाई आप स्कूल नहीं जाते, इतने बड़े बड़े हो गए हो। तो वो कहते थे कि भाई हमारे को ना हमारे पेरेंट्स भेजते नहीं है स्कूल में, और ना हम पढ़ना चाहते। पेरेंट्स को समझाया, इनका मेन काम है कूड़ा बीनने का, ये ना कूड़ा बीन के लाते हैं। तो ये हमने पूछा भाई आप इनको क्यों भेजते हो कूड़ा बीनने के लिए। तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का, 8 साल का। वो कहते हैं हमें मैम अगर आज हम कूड़ा नहीं बीनेंगे ना तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जो को ना बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मतलब स्कूल तो गए ही नहीं, उन्होंने पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती थी। हमने उनको अपने पास अपने हाथ से लिखना सिखाया। ये बच्चे बहुत ही मतलब ये नहीं है कि भाई इनको कुछ नहीं आता, बहुत ही एक्सपर्ट है। इनको बहुत कुछ इनको सिखाने वाला चाहिए, सीख तो ये जल्दी जल्दी जाते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3 ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ IPS ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ IPS ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਪੜ ਪੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਵਾਉਣ ਅੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਝੋਪੜ ਪੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇਣਗੇ। ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। नमस्ते जी। नमस्कार बहन, किस तरह आपने ये स्टडी का जो काम स्टार्ट किया, हमको ऐसा लगा कि देखो आप समाज के जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उन बच्चों को कोई पास आने में खड़ने में नहीं जाता। जो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, चाहे कुछ भी है पैसे वाला, कोई भी सोचता है भी यार झोपड़पट्टी मांगने आ गया 10 रुपए इसको दे और 2 रुपए दे, है ना। तो आपने ये जो काम स्टार्ट किया, ये जो सेवा स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, कैसे माइंड में आया भी इस तरह हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और किस तरह इनका जीवन बना सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पर आए, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संयोगिता है हाँ जी। और मैं यही सेक्टर 16 में रहती हूँ। तो ठीक। ये हमारे पास में ना झुग्गी झोपड़ी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से बच्चे ना हमारे घर पर मांगने के लिए, खाने का मांगने के लिए जाते थे। तो हम उनसे पूछते थे भाई आप स्कूल नहीं जाते, इतने बड़े बड़े हो गए हो। तो वो कहते थे कि भाई हमारे को ना हमारे पेरेंट्स भेजते नहीं है स्कूल में और ना हम पढ़ना चाहते, क्योंकि उनके पास कुछ सुविधाएं भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा उनसे भी चलो हम पढ़ा देंगे, आप पढ़ने को तैयार हो? तो वो बोले हाँ हम पढ़ लेंगे अगर आप हमको कॉपी पेंसिल देंगे तो। तो फिर मैंने 2 मैम थी हम शुरू पहले, तो हमने दोनों ने शुरू कर दिया और हमने यहाँ आके इनके पेरेंट्स से बात की। तो वो बोले भाई चलो आप पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा सकते हो, भाई हम नहीं कॉपी किताबें देंगे। मतलब हमने कहा भी हम खुद घर से लेके आपको इनको कॉपी किताब देंगे, आपने सिर्फ बच्चों को भेजना है। तो उन्होंने बच्चे भेजने स्टार्ट किए, तो हमने 5 या 6 बच्चों से शुरू किया था। मैम देखा जाए तो आप भी किसी अपने घर के गृहस्थ काम करने, अपना सिस्टम सारा परिवार होता है, आपके घर में भी काम होता है, आपका भी गृहस्थी जीवन है, गृहिणी हो आप, है ना, हाउस वाइफ हो। हाँ जी। तो कैसे समय निकाल लेती हो इस चीजों के लिए, क्योंकि अपने बच्चों के लिए लोगों के पास आजकल समय नहीं होता, उनको बच्चों के साथ बैठने का, पढ़ाने का। तो आप इन बच्चों को कैसे पढ़ा लेती हो समय निकाल के। देखो मैं ना पहले जयकर्ण सर जी के पास हम वहाँ पर मैंने देखा है, मैं वहाँ कॉपी किताब देने के लिए जैसे चले जाते थे, जैसे मेरे अच्छा। बच्चे का बर्थडे वगैरह होता था ना, तो हम वहाँ जाते थे। तो मैं देखती सर ना लगे हुए हैं, 50 बच्चे हैं पढ़ाए जा रहे हैं, पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके फिर 4 बजे उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैंने वहाँ सोचा अगर सर यहाँ अकेले ये काम कर रहे हैं तो भाई हम भी कर सकते हैं। तो मैंने पूछा मैम से, वो बोली भी शाम का टाइम रख लेते हैं। तो शाम का टाइम हमारा समझ लो अपने लिए होता है, बिल्कुल। हम अपने काम से सारे काम हो चुके होते हैं। तो फिर हमने शाम का टाइम रखा इन बच्चों के लिए और हम 4 से 4:30 से 6 या 6:30 बजे तक इनको पढ़ाते हैं। 6:30 बजे तक। फिर मैम देखो इनके घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। ये सभी चीजों का आपने सामना कैसे किया, कैसे गैदरिंग की, इन बच्चों को कैसे जोड़ा, क्योंकि जोड़ना ही सबसे बड़ी बात मुश्किल सी। एक देखा जाए तो इनके घर वालों को आप जब बोलते होंगे तो ये कहते होंगे क्या पढ़ना क्या पढ़ाना, ऐसे होता होगा। पर कैसे आपने उसको हैंडल किया उस चीज़ों को? देखो हमने इनको पेरेंट्स को समझाया, इनका मेन काम है कूड़ा बीनने का। ये ना कूड़ा बीन के लाते हैं। तो ये हमने पूछा भाई आप इनको क्यों भेजते हो कूड़ा बीनने के लिए? तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का 8 साल का। वो कहते हैं हमें मैम अगर आज हम कूड़ा नहीं बीनेंगे ना तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, हम इस कूड़े को ही बेच के हम आटा लाएंगे, उससे ही हम रोटी बनाएंगे। तो मैंने उनके पेरेंट्स को समझाया भी आपने भी पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दिया और ये भी ऐसे ही निकाल देंगे। तो फिर उनकी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, तो उन्होंने धीरे धीरे करके बच्चों को भेजना शुरू कर दिया हमारे पास। फिर आप उसके बाद पढ़ाने के लिए क्या क्या, देखो इन बच्चों को तो पेंसिल भी चलानी आती थी कि या कैसे, मतलब कि आपने कैसे इन बच्चों को गाइड किया, कैसे पढ़ाना स्टार्ट किया? नहीं, इन बच्चों को ना बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मतलब स्कूल तो गए ही नहीं, उन्होंने पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती थी। हमने उनको अपने पास अपने हाथ से लिखना सिखाया। ये बच्चे बहुत ही मतलब ये नहीं है कि भाई इनको कुछ नहीं आता, बहुत ही एक्सपर्ट है। इनको बहुत कुछ इनको सिखाने वाला चाहिए, सीख तो ये जल्दी जल्दी जाते हैं। ये ना हफ्ते 10 दिन में ही ट्रेंड हो गए, फटाफट लिखने सीख लिया इन्होंने, पेंसिल में भी पकड़नी सीख ली और बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। मैम देखा जाए तो हम जैसे तपड़े में बैठे हुए हैं, ऐसी हालात में बैठे हुए हैं, पर संसाधनों का ना होने के बाद भी आप इस चीज को चला कैसे रहे हो? संसाधन तो पूरे नहीं है, कई बार ऐसा होता है भी पेन पेंसिल की भी प्रॉब्लम आती होगी आपको, है ना, क्योंकि आप भी अपने घर से खर्चा सारा नहीं कर पाते। पर इनको फिर सभी प्रोवाइड कैसे चीजें कराते हो, कैसे?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में तो जैसे हमने अपने घर से ही शुरू किया, फिर धीरे-धीरे करके आस-पास के जैसे सेक्टर 16 से लोग जुड़ते रहे। फिर मैंने अपनी जैसे क्लास की फेसबुक पर फ़ोटो डालनी शुरू कर दी, तो बहुत से समाज के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो जुड़ते चले गए। आज मैं घर से कुछ नहीं लेके आती, सब वही कॉपी, पेंसिल, इनकी मतलब टाट, पट्टी, ब्लैक बोर्ड सब कुछ दे जाते हैं। सबको दे हाँ जाते जी, हैं। सब कुछ दे जाते हैं। उनको ना एक बार बताने की ज़रूरत है, बहुत से तो ऐसे है वो कहते हैं हमें फ़ोन कर दियो, भई हम ना आपको जिस चीज़ की भी नीड है हम वही दे देंगे। फिर ये बच्चे कैसा महसूस करते हैं जब आपसे पढ़ते हैं, आपसे मिल के यहाँ पढ़ के कैसा महसूस होता है इनको आप? इनको ना 1 दिन की भी छुट्टी कर देना, हम जैसे भई हमारे को आज काम है तो बार-बार फ़ोन करेंगे, मैम आ जाएँ हम आ जाएँ। मैं कहती हूँ नहीं आज की मैंने छुट्टी कर रखी है, इनका ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता और इनके बिना अब हमारा भी नहीं लगता। हाँ, देखा जाए तो खुले आसमान के नीचे स्कूल है, खुले आसमान के नीचे आप क्लास लगा रहे हो, कैसा मन को महसूस होता है जब जब कई बार ऐसा महसूस नहीं होता भी कि हम इनके लिए कोई स्कूल बनाए, इनके लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे इनका भविष्य कल को बहुत अच्छा हो? नहीं देखो सरकार ने ना बहुत स्कूल भी बना रखे हैं, जीरो क्लासेस चालू कर रखी है। मैंने तो खुद कम से कम 10 बच्चों का एडमिशन जीरो क्लासेस में करवाया था और ये स्कूल जा भी रहे थे। बट यही है कि जैसे ये ना इनके पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है तो उनको ना बहुत ही मुश्किल होता है मनाना। समझाना, हाँ। हाँ, समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये जाते हैं थोड़े से दिन चोचों में फिर रह जाते हैं। बट अब तो ऐसे बच्चे जुड़ चुके हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो हमारे पास ट्यूशन के लिए कई आते बार हैं। ऐसा होता है मैम, कई बच्चे जिद करते हैं स्कूल में नहीं जाना, पर आपकी क्लास में आने के लिए बच्चे, आप बोला आपने जैसे अगर बताया कि ये कहते हैं भी आप जिस दिन छुट्टी करते हैं छुट्टी पे भी नहीं करना चाहते है ना? हाँ होता है क्योंकि देखो यहाँ ना जो समाज के जो भी आते हैं यहाँ देने के लिए वो बच्चों के लिए बिस्कुट हाँ। फ्रूट भी लेके आते हैं तो ना बच्चों को ना एक वो रहता है कि भाई हमें खाने को भी चीज मिल जाती है और साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। फिर आपने क्या कुछ सिखा दिया इन बच्चों को, इंग्लिश वगैरह के जो एबीसी वगैरह जो भी है ना, नंबरिंग्स, सब कुछ आप सब कुछ सिखाते हैं इनको फिर? हम ना इनको बस बेसिक ही सिखाते हैं जैसे गिनती होगी पहाड़े हो गए का खा गा हो गया ए फॉर एप्पल सिखा देते हैं जैसे बच्चा दिखता है ना भाई ये कवर कर लेगा उसको ना उसी हिसाब से सिखा देते हैं। हम 5वीं क्लास तक की बच्चे ही क्या रखते हैं। लगता है इनका भविष्य क्या होगा मैम, आपके जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, चाहे कहाँ तक भी पहुंचा रहे हो इनको, क्या लगता है? देखो वो तो ना क्या कह सकते हैं बच्चे ना बहुत कोशिश कर रहे हैं इनमें से अगर 2-4 बच्चे भी आगे निकल जाए ना तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और मेरे को लगता है कि भाई हाँ बच्चे सफल भी होंगे इनमें से। बिल्कुल। कोई बच्चा एबीसी या कुछ सिखाए सुनाएगा पोएम वगैरह? किसको आती है पोएम? जो भी कुछ सिखाता आता है, आ जाओ ऊपर आ जाओ, पापा किसको आती है? जल्दी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मायरा की बात करो। चलो वो जो भी बोलेगा ऊंचा बोले, देखने बच्चा केड़ा है। तू सुनाएगा बेटा? आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, अच्छे से सुना दे यार। क्या सुनाएगा? सुनाओ। सुना दो जो भी सुनाना है आपको, सुनाओ खड़े सुना दो, खड़े होते हैं। जल्द से बोल सुनो। हाँ आगे सुनाओ। बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंग्लिश इंग्लिश में सुना दो, 1 2 3 1 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 45 46 बस 47 बस 48 ठीक है ठीक है ठीक है, 50 तक तो सुना दिया हाँ है, जी 100 और तक 100 तक आती है। हाँ जी 100 तक भाई बच्चे की हिम्मत है ना। अब क्या तू क्या सुनाएगी बेटा? कौन सुनाओ सुनाएगी? तू बेटे सुनाएगी? बेटे सुनाओ 18 का 12 का 16 का कुछ जो भी भी सुना आता दे, आ जाओ। है। ये कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा तू? 5 इधर आ जाओ, इधर, हाँ पांचवी यहाँ में आ जाओ। जाती है वैसे। 5वीं क्लास में पढ़ते हो? फिर क्या कुछ आता है आपको? कोई भी सुनाओ, पढ़ा सुनाओ। पढ़ा हाँ, कौन 18 का 18 का सुनाओ। 18 का 18 18 36 38 54 68 72 58 95 108 98 126 98 144 98 162 98 180। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ऐसा है जी, हम तो सारे बच्चों को ना सब कुछ ही सिखा रहे हैं अपनी तरफ से। तो आंटी जी कितना टाइम होगा तुम सेवा करते मेरे लिए? मैं और संगीता मैडम दोनों ही ने शुरू किया था ये,
ठीक है जी। और हमारे ना जयकरण सर हैं, हमने जो भी किया ना उनके उससे किया, उनको देख के ही किया। बस उनको इंस्पायर हो गए आप, है ना। उन्होंने स्टार्ट किया था रेलवे वहाँ उधर कैथ रोड पे, है ना, तो उससे इंस्पायर हो गया आपने भी ऐसे खोल दिया, है ना। वो कहने लगे अगर भाई यहाँ पढ़ाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। और फिर हमने सोचा भाई वहाँ इतनी दूर जाएंगे तो क्यों ना हम अपने ही एरिया में देखें। हाँ जी, ऐसे समय कैसे निकाल लेते इतना, है ना, घर में आपको भी काम होते होंगे। समय तो देखो, कोई भी जैसे हम काम करते हैं ना, एक लक्ष्य बना लेता है बंदा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जैसे पढ़ाई का हो या पढ़ाने का हो। हाँ जी। अगर हमने लक्ष्य बना लिया ना कि हमने ये काम करना है तो उसके लिए टाइम निकल ही क्या जाता है। मिलता है आपको इस ये बच्चों को पढ़ाने के बाद, क्या मिलता है, क्या हमारे को खुशी मिलती है। खुशी मिलती है? हाँ, हमें बहुत खुशी होती है। हम जब बच्चे को पढ़ा देते हैं, मान लो हमने आज इस बच्चे को A to Z सिखा दिया और कल आके हमने इससे सुन लिया और उसने सुना दिया, तो हमें ये खुशी मिलती है भी हाँ हमने कुछ करा। मैम देखा जाए तो लोग स्कूलों में मैडमें जो पढ़ाती हैं पैसों के लिए पढ़ाती है ना, नौकरी के लिए हर बंदा चाहता है, हर कोई अपने घर के लिए पढ़ाता है, पर आप इतना समय निकालते हैं वो फ्री में। क्योंकि मैंने देखा है अभी जब भी आप ट्यूशन किसी भी ट्यूशन पे जाते हो वहां पर 500 रुपए उसकी फीस होती है, 800 रुपए फीस होती है, इतनी इतनी फीसें आपको भरनी पड़ती है, जैसे आप भी भरते ही होंगे मेरे हिसाब से, तो आपके बच्चों के लिए भरते होंगे, तो आप इनको लिए वही ट्यूशन फ्री में पढ़ा रही हैं। ऐसा है ना, देखो ये बच्चे जो है ना, ये फीस तो दे नहीं सकते, ट्यूशन फीस, हाँ जी, ठीक है। और ये बच्चे ना सरकारी स्कूल में जाते हैं, पहले इसमें से आधे बच्चे हमने ही भेजे हैं ओके, आगे सरकारी स्कूल में पढ़ा के यहाँ से, ठीक है। तो आगे सरकारी स्कूल में जब जाते हैं तो हमने सोचा कुछ हम भी कवर कराएं तो बच्चा कुछ और सीखेगा, तो हम एक ट्यूशन टाइप देते हैं इनको। और हमारी क्लास का नाम ही उम्मीद पाठशाला है। एक उम्मीद जगा रहे हो दुनिया में इन बच्चों की जिंदगी में, है ना, उम्मीद जगा रहे हो। हमारी भी उम्मीद है, अगर इनमें से 5 बच्चे भी ऐसे निकल जाएंगे, लड़की कि मान लो हमने करनाल से दिल्ली जाना है, अपने आप चली जाए। फिर आने वाले में कोई ऑफिसर बन गया तो फिर वो आपको याद किया करेगा यहाँ पर वो बैठ तो के देखो, जिसने हिंदी पढ़नी आ गई, इंग्लिश पढ़नी आ गई, तो कभी ना कभी तो वो याद करेगा ही कि हमारे एक टीचर थी भाई, वहाँ पेड़ के नीचे पढ़ते थे, बिल्कुल ठीक है। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ मैम एक बात देखा जाए तो अभी गर्मियों का टाइम है, जैसे लोग अपने घरों में इस टाइम एसी में बैठे होंगे, ये टाइम जो है एसी में आराम से सो रहे होंगे, निकल के आए है ना। वैसे देखा जाए तो लोग बैठे होते हैं, पर आप फिर भी 2 घंटे 3 घंटे निकालते हो गर्मी में, जहाँ पर लोग तो ये तो अपना कर्म कर रहे हैं हम, ये तो हम अपना कर्म कर रहे हैं। और जो बच्चा पढ़ेगा वो इनका कर्म है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। इधर भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी उम्मीद पाठशाला में आए। बिल्कुल। जो कोई सहयोग भी करना चाहता हो तो इस जगह कौन सी है मैम यहाँ पर? सेक्टर 16 है ये। सेक्टर 16। हाँ जी, सेक्टर 16 है। और ये कौन सा है यहाँ पे, ये खुली हुई है ना, ये कौन सी मतलब होटल है यहाँ पर? हाँ, होटल के पीछे बैक साइड में। सेक्टर 16 में ना मैम, क्या कौन सा? जेलोस फायर और कलौंजी वाली रोड है जी। मैम आप भी हाउस वाइफ हैं, तो आप भी समय निकालते हो बच्चों के लिए, हाँ? हाँ, बस थोड़ा सा पहले तो हमने प्रोफेशनल ट्यूशंस कराई हैं अच्छा जी, घर पे पेक पे भी, बट अभी वो छोड़ दी। ऐसे लगता है जैसे हम अपने बच्चों को भी ट्यूशंस भेजते हैं। अब जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती ट्यूशंस, हाँ जी, तो हम उनको करा रहे हैं यहाँ पे। स्कूल तो ये लोग जाते ही हैं, हाँ जी, बट जैसे इनकी जो पेरेंट्स है, किसी के घर में मेड है, कुछ ऐसे काम करती हैं, तो फिर वो लोग नहीं वैसे अफोर्ड कर पाते ट्यूशन। और ट्यूशन तो आजकल की नीड है, बच्चों को चाहिए होती है ट्यूशन। तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ट्यूशन, हम उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल देते हैं बिल्कुल। बस। मैम ने देखो ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾ, ਹਨਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ, ਖੁੱਲੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਘਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।